You, Shreya, such a pleasure having you here. I'm surprised that I fell for him. I think good things do come in small packages. सेकेंड जॉब में मिले थे एंड ही वॉज माई जूनियर. ही वॉज अर्निंग लेसर देन मी. मैं गौरव को बोलती हूँ यू वर माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट. देखो मैं तो बॉलीवुड मूवीज देख के बड़ी हुई. मेरा डेफिनेशन तो वही है कि ग्रैंड जेस्चर्स और वो सब. Tell us about that office romance. गौरव रोमांटिक आपको लग रहा है? गौरव बिल्कुल भी नहीं है ऑफिस रोमांस. Meet Shreya Sharma, an entrepreneur and creative force who built Label Shreya Sharma, a sustainable fashion brand celebrating Indian elegance and individuality. She's also the grounded, witty heart of Gaurav Kapoor's vlogs, a voice of warmth, honesty, and effortless charm. The IVF journey that you have gone through. I was diagnosed with endometriosis. और उसका solution यही है that you have to get pregnant as soon as possible. Like, so she was like कि urgency कि नहीं आपको तो अभी pregnant होना है. मैंने कहा मैं नहीं हो सकती, sorry. And how was that moment when you held Madhav for the first time? I still have that picture of me. I was like in tears, obviously. समय राणा का जो केस हुआ. So as a family who's into content creation, how do you ensure that we have to protect ourselves from that space as well? Okay, the nation wants to know, Shreya, कि vlogs कब आ रहे हैं? Thank you, Shreya. Such a pleasure having you here. बहुत बहुत शुक्रिया for joining us. Thank you so much. Thanks for calling me. Pleasure is all mine. And I want to say that this is my first podcast, very first podcast that I'm ever doing. So yeah. So Shreya, you play different roles in your life. You have your own vlog. You run channel. You are a mother. You are an entrepreneur. You have been in corporate career as well. तो इन सब में से वो कौन सा रोल है जो आपके दिल से बहुत करीब है? I don't know. मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे ऑब्वियसली ये सारे रोल्स आए थे. हर एक जंक्चर पे जो भी मैंने रोल प्ले किया इट हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट टू मी ओनली. सो अभी तो जैसे आई एम नॉट इन कॉर्पोरेट सो obviously but when I was there so then you know my career my ambitions ये सारी चीज़ें मेरे लिए तब बहुत important थी. then I was not a mother but अब जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है so now I see that I'm managing a business, I have a baby. फिलहाल के लिए अगर आप मुझसे पूछो तो these two things are the top priority in my life. And which is close to your heart? Both equally? Obviously I'll say motherhood because it has changed me completely. Yes. So एक विमेन से ना इट्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि ओ ये तो मदरहुड ही बोलेगी. बट ऑफ कोर्स मदरहुड तो है ही एंड इट्स ऑल्सो लाइक यू नो साइमल्टेनियसली माई करियर माई बिजनेस एंड एवरीथिंग. सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आई हैव टू मैनेज और सब देख के चलना पड़ता है. सो या. एंड यू कॉल योर सन माधव, है ना? माधव केशव का नाम है, कृष्णा का नाम है. सो हाउ डिड दिस नेम केम टू यू? So like we were previously discussing, so I was following an account on Instagram, a lady, you know, who had difficulty in conceiving, and you know she had a very tough, like she couldn't conceive because of some of the other reasons. And I was also going through the same phase at that time, so I started following her. She adopted a baby girl, and she used to share her adoption journey and all of that. So because I was also thinking कि ठीक है, like I'll try, and because I had my baby at a very later stage, so it kind of gets difficult to conceive and have a baby. और तो मुझे लगा मैं भी यही सोच रही थी कि अगर I'll try अगर होता है तो ठीक है, otherwise I'll go take the adoption route. So then I started following her and तो उनकी एक बेटी थी तो then later she had also adopted a boy. So she named her boy Madhav and I was like ठीक है अगर कभी मेरा लड़का होता है और you know कुछ if anything works out, so I'll also name him Madhav. So वो था मेरे दिमाग में but when जब माधव हुआ so everybody was like कि brainstorming अच्छा ये नाम रखेंगे वो नाम. अब आपको लगता है कि किसकी बात सुनो, आप हस्बैंड की बात सुनो, इसकी बात सुनो, इसको गौरव was like वो तो ऐसे weird नाम लेके आ रहा था, इसका कुछ तो नाम रख दो, ये रख दो, वो रख दो. मैंने कहा just hold on. So then I just contemplated and I thought अच्छा I thought कि मैं वो नाम रखूँगी. So then I told him कि गौरव I'm thinking we should keep Madhav. He was like हाँ अच्छा नाम है, रख लेते. So that's how this thing, the story. But can you? So I even messaged that lady. I told her like you know she was Gaurav's fan. She didn't know that I follow her. So she was Gaurav's fan. So she messaged me like I saw that you're Gaurav's wife. You're following me, and how come? And तो ऐसे ही हमारी बातें हुई. तो I told her that you know what that I named my son Madhav after you named your son
Madhav. She was like, oh, I cannot believe that's मतलब you never know ना आप किसको कैसे influence कर रहे हो. Influence कर रहे हो. And how was that moment when you held Madhav for the first time? मैं तो I still have that picture of me. I was like in tears obviously Yeah. because जब आप pregnant होते हो ना तो you don't know how your baby is going to look like और लड़का होगा लड़की होगा इतने सारे anticipation like I don't know a woman she'll understand. आप सोचते हो पता नहीं कैसा किस पे जाएगा मेरे पे जाएगा अपने पापा पे जाएगा कैसा चेहरा होगा लड़का होगा लड़की होगा इतने सारे एंटिसिपेशन सो व्हेन द बेबी इज इन योर हैंड एंड यू सी द बेबी देन यू फील लाइक ओके मतलब एक फेस मिल जाता है आपको आपके सारी इमेजिनेशन का आप जो भी एंटिसिपेट कर रहे होते हो उसका तो फीलिंग तो और प्रेगनेंसी के टाइम में मोस्ट ऑफ द वुमेन दे आर वेरी एंशियस लाइक यू नो इफ़ यू लास्ट देम कि सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं हॉर्मोन्स इतने ऊपर नीचे हो रहे होते हैं एंड देन यू नो बाय द एंड ऑफ इट वी आर लाइक सो एग्जॉस्टेड वी आर लाइक जल्दी से बच्चा हो वो वाली चीज़ होती है सो व्हेन इट हैपेंस सो देयर आर सो मेनी इमोशंस आप बता ही नहीं सकती मतलब टिल द टाइम समबडी डजंट एक्सपीरियंस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस कि कैसा फील होता है आपको जब यू नो यू आर होल्डिंग योर बेबी इन योर आर्म्स सो आई वाज लाइक लिटरली इन टीयर्स गौरव मेरे साइड में खड़ा था आई स्टिल हैव दैट पिक्चर ऑफ मी वो साइड में खड़ा हुआ है एंड सो या आई स्टिल लाइक दैट मेमोरी इज वेरी फ्रेश इन माय माइंड So since Shreya, you are talking about Gaurav, कि Gaurav was standing next to you when you held the baby in your hand. He has spoken about the whole experience in his blessed video. But would love to understand this journey from you. कि मेरे को लगता है कि जब भी हम एक किसी ऐसे रास्ते से जा रहे होते हैं जो थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड हो रहा है फॉर एग्जांपल द IVF जर्नी दैट यू हैव गॉन थ्रू उसमें हम क्या करते हैं कभी कभी अपने आप को डाउट करते हैं कभी कभी अपने आप को क्वेश्चन करते हैं और कभी कभी हम भगवान से कॉन्वर्सेशन करते हैं सो इफ यू कैन जस्ट टेक अस थ्रू दैट जर्नी सो आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग जब मेरी और गौरव की शादी हुई सो वी डेंट मतलब इमीडिएटली हम कुछ प्लान ही नहीं करे थे कि मैं बच्चा करना है वी जस्ट वांटेड टू एंजॉय लाइफ कि अपना ज़िंदगी जीने है मस्ती घूमना फिरना है खूब पैसे कमाने हैं करियर बनाना है दिस वाज अ होल मतलब बच्चे का हम दोनों ही कॉन्वर्सेशन ही नहीं होता था सो आई डोंट नो दैट वाज नॉट देयर इन बहुत ही नहीं लगता था कि हमें बच्चे की ज़रूरत है या लाइक यू नो तो वो वाला हम स्टेज पे कभी आए नहीं थे सो आफ्टर आई विल से बट यू नो धीरे धीरे करके ऐसा होने लगा था आफ्टर 35 आई डोंट नो मे बी बिकॉज ऑफ seeing all my friends having kids I don't know for whatever reason थोड़ा सा दिमाग में आने लगा कि यार करना चाहिए बच्चा नहीं करना चाहिए अब हम अपने जैसे मेरे कजन्स थे उनसे भी पूछते थे कि करना चाहिए सो दे यूज टू गिव वेरी वेग आंसर इट्स द बेस्ट फीलिंग बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ज़िंदगी पूरी वो हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा 20 ईयर का प्रोजेक्ट है फलाना है धिमकाना तो आप इतने असमंजस में रहते थे कि करना है नहीं करना गौरव तो ही वॉज क्लियर हाँ ठीक है नहीं करना है बस ठीक है बट मेरे दिमाग में आता रहता था वो कि करूँ लाइक शुड बी ट्राई शुड बी नॉट ट्राई विल आई मे बी रिग्रेट लेटर विल आई नॉट मतलब आई डोंट नो लाइक वो चीज़ चलती रहती थी दिमाग बैक ऑफ द माइंड कहीं थोड़ा सा फिर बीच में जैसे आता नहीं फिर करियर कैसे बनेगा कि ट्रैवल कैसे करेंगे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सारी चीज़ें भी आती थी तो फिर वो आगे पीछे करके होके चलता रहता था सो वो मतलब वही वो असमंजस में ही रहती थी मैं सो बट अल्टीमेटली यू नो व्हाट हैपेंड कि आई थॉट कि यार बहुत बार हम वो वाले चीज़ें रिग्रेट करते हैं जो डिसीजंस हम नहीं लेते हैं एज अपोज टू द डिसीजन दैट वी टेक इन लाइफ सो मुझे वही लगता था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर यू नो वो टाइम चला जाए एंड देन आई विल बी लाइक शिट यार एक बच्चा करना चाहिए था मे बी वी वुड हैव एक्सपीरियंस्ड अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और समथिंग सो देन आई काइंड ऑफ स्टार्टेड फॉलोइंग कि गौरव को भी आई वाज लाइक आई थिंक वी शुड हैव इट ही वाज लाइक श्रेया आप तो बोल रहे थे कि बच्चा करना नहीं है ये अचानक से क्या हो गया मैंने कहा यार अब लड़की यू नो दैट फीलिंग स्टार्ट्स कमिंग राइट आई डोंट नो ऑटोमेटिकली या पीयर प्रेशर या घर में सब बोलने लगे आई डोंट नो फॉर वॉट एवर रीज़न वो थोड़ा वो आने लगता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें आने लगी थी देन वॉट हैपेंड इन 2023 आई लेफ्ट माई जॉब आई वाज लाइक ठीक है लेट मी स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ माई ओन तो मैं अपना फिर बिजनेस स्टार्ट किया तो वो थोड़ा बच्चा वाली चीज़ फिर एक बैक सीट ले क्योंकि अब बिजनेस में तो पूरा ही टाइम आपको चाहिए होता है तो 2-3 साल तो आई वाज लाइक कि यार अब तो कर ही नहीं सकती और एज भी निकले जा रही है तो उस बीच में क्या हुआ था दैट यू नो आई स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक यू नो माई पीरियड
used to be very painful and all. So I was like, ठीक है एक बार गायनी से check करवा लेते हैं. And I just went and then gynae was like कि you'll have a very tough time having kid. मैंने बोला क्यों? बोला आपको तो बहुत मुश्किल होगी बच्चा करने में क्योंकि there is something called endometriosis. So I was diagnosed with endometriosis. और मुझे पता ही नहीं था like you know this is something that started very early but most of the girls might be having it, maybe they don't know or something. तो लड़कियों का ऐसा होता है ना कि यार पीरियड का दर्द हो रहा है दवाई खा लो, ये पेन किलर खा लो, ठीक है लाइफ गोज ऑन ऑल. तो मेरा भी यही था कि हाँ ठीक है ज़िंदगी तो चल रही है, पीरियड्स हो रहा है दवाई खा रहे हैं. बाद में जब पता चला कि ओके दिस वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस एंड दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस, तब मेरे थोड़े से ना आँख खुली. मैंने कहा ओ गॉड, मैंने कहा ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी. देन आई वेंट एंड आई टोल्ड गौरव एंड देन द गायनी टोल्ड मी दैट, देन आई टोल्ड द गायनी कि मैं तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया है, मुझे तो टाइम देना और आप तो बोल रहे हो आई नीड टू कंसीव एज सून एज पॉसिबल. और उसका सॉल्यूशन यही है दैट you have to get pregnant as soon as possible. Like endometriosis is like, and especially with the age and all. So she was like कि urgency कि नहीं आपको तो अभी pregnant होना है. मैंने कहा मैं नहीं हो सकती, sorry. मैंने कहा मेरा business मैं start किया है वही, मैंने saving लगाई है, गौरव से पैसे उधार लिए उसकी saving लगाई है. मैंने कहा तो then she was like okay then go with egg freezing and all. So I was like ठीक है. So मैंने तो सुना था हाँ सब कुछ egg freezing होता है, like I was like ठीक है करा लेते हैं. और मुझे लग रहा है हाँ ठीक है क्या है एग फ्रीजिंग तो कराना है. देन व्हेन आई स्टार्टेड द प्रोसेस, मतलब इट्स लाइक IVF का फर्स्ट स्टेज, लाइक टू फ्रीज योर एग्स एंड ऑल. ओ माय गॉड, लाइक एक तो एंडोमेट्रियोसिस था मुझे विच वाज ऑलरेडी अ पेनफुल थिंग, ऊपर से द हार्मोन्स इंजेक्शंस एंड ऑल आर इंजेक्टेड ऑल्सो, इट काइंड ऑफ फ्लेयर्ड अप. तो फिजिकली तो इट वाज वेरी बैड. मतलब आई वाज लाइक क्या कर रही हूँ मैं. सो 15 डेज़ के लिए वो आपको ना हार्मोन इंजेक्शन देते हैं सो दैट दे कैन रिट्रीव एग्स फ्रॉम यू. बाय 10th मेरा इतना पेट मेरा दुखता था. आई वेंट एंड आई क्राइड विद इन फ्रंट ऑफ अ गाय. मैंने कहा मुझे नहीं कराना है, मुझे नहीं करना है बच्चा, अब रहने दो. शी लाइक श्रेया 10 दिन हो गए यार, 5 दिन की बात हो रही, कर लो क्या जैसे जैसे करके कर लो. सो देन आई वेंट अहेड, आई गॉट द एग रिट्रीवल डन. फिर तो when you're married, so there's this thing called embryo freezing. So if you're unmarried, then they freeze your egg. If you're married, obviously with your husband's sperm and your egg, it's called embryo freezing. So they freeze the embryo, and whenever you're ready, they kind of implant it. So she was like कि ठीक है आपका जब आपको लगे कि आपका business settle हो गया, you can go ahead and get the implantation done and all of that. I was like ठीक है. मैंने कहा अब तो है एम्ब्रियो तो फ्रोजन है, अब आराम से करती हूँ. तो फिर अब मैं टाइम ले रही हूँ, फिर 1-2 साल निकल गए, 1 साल इनफैक्ट. देन आई वाज लाइक चलो ठीक है अब करवाते हैं इम्प्लांटेशन, एंड इट डिडंट वर्क. सो देयर इज नो गारंटी. हाँ लाइक लॉट ऑफ यंग गर्ल्स दीज डेज आई हियर कि अच्छा कोई नहीं, वील डिले आर प्रेगनेंसी एंड ऑल बिकॉज अच्छा एग फ्रीजिंग तो करा सकते हैं. सो आई जस्ट वांट टू से कि कोई गारंटी नहीं है कि आपने एग फ्रीजिंग करा लिया तो आप यू विल बी एबल टू कंसीव. Having gone through all the pain. तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है that if you get your eggs frozen तो आपका you know you'll conceive. बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कितने एग्स आपके फ्रोजन हैं, वो हेल्दी हैं कि नहीं, एम्ब्रियोज फॉर्म हुए हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो इट्स नॉट, क्योंकि मुझे भी यही मिसकंसेप्शन था कि ठीक है मेरे एम्ब्रियोज तो फ्रीज हो गए तो अब तो कंसीव कर लूँगी आराम से, बट ऐसा नहीं होता है. देन इट डिडंट वर्क एंड देन आई वाज लाइक shattered. I was like shit yaar, all this pain and all these hormone injections, emotionally it's such a मतलब difficult journey. Because आपको जब आप एम्ब्रियो आपके अंदर डालते हो 15 दिन आपको वेट करना पड़ता है कि will it be a positive news or what. तो बहुत ही like आप खाली वेट ही कर रहे होते हो कि क्या will I conceive, will I not conceive, will I conceive, will I not conceive. तो and 15 दिन के बाद पता चलता है though it didn't work. It's emotional trauma, physical, financially also it's quite draining. So I was so completely shattered. But then I kept that thing on hold. I was like, ठीक है यार, it's okay. So that's when I started following all these accounts. Like I was thinking कि maybe I'll adopt, or अगर नहीं होता है workout नहीं होता है, so it's okay. And I know quite a lot of my friends also, who have gone through the adoption route and they're quite happy parents and also. I was like, ठीक है यार, big deal. तो we'll adopt, कोई बात वो नहीं है. उस समय what was Gaurav's response, reaction? How did he take care of you? What kind of conversations were you having with him, with your family members? So I didn't speak about this with my family member. Nobody. Only Gaurav knew and I knew.
मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी हमें वैसा, बिकॉज गौरव वॉज माई सपोर्ट सिस्टम एंड लाइक दैट्स इनफ कि क्योंकि क्यों बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना, फिर सबके ओपिनियंस, अरे करना चाहिए नहीं करना, देखा हमने तो बोला था जल्दी कर लो बच्चा, ये वो, तो क्यों मतलब क्यों And इन्वॉल्व करना especially इतना, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेशर है. बहुत ज़्यादा है. बट अगर आप मुझसे पूछो ना गौरव कि जल्दी करना चाहिए बच्चा, या आई स्टिल से टेक योर टाइम. Take your time. Yeah. just Unless because you're mentally- just because your fertility is reducing, like because अब just now that I've had a kid, it's such a big responsibility. Your career takes a back seat. Like even your relationship with your spouse, like बहुत change हो जाता है चीज़ें ना, like it's very कि हाँ हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में, जब हमारा बच्चा नहीं था सो इट फील्स यूज, हाँ गौरव घूमने जा रहा है ठीक है कोई बात नहीं. अब जैसे वो जाता है तो आई एम लाइक प्लीज़ रहो यार, मतलब अब बच्चा को दोनों ही देखेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं वंस यू हैव अ किड. सो आई विल तो ऑलवेज से कि प्लीज़ टेक योर टाइम, स्पेशली अपना करियर फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाओ तभी बच्चा करो. सो इफ़ यू आस्क मी आई विल स्टिल से, अगर पेरेंट्स का भी प्रेशर आ रहा है, किसी का भी आ रहा है, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आफ्टर 35 टू गेट प्रेगनेंट, बट आई विल से कि वो टाइम लो, आप पैसा कमाओ, इतना पैसा कमा लो कि एटलीस्ट यू कैन अफोर्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, बट स्टिल टेक योर टाइम. एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, लाइक यू नो, लाइक आदमियों की बॉडी को थोड़ी कुछ वो हो रहा है, इट्स द गर्ल्स, तो गर्ल्स हैव टू टेक दिस डिसीजन ऑन देयर बिहाफ. और जो करना है आपको लाइफ में कर लो, बच्चा करने से पहले घूमना है, जितना घूमना है घूम लो. लिटरली मैं उसके बाद मेरा ऐसा हो गया था, मुझे घूमने से एलर्जी होने लगी, बिकॉज गौरव ट्रैवल सो मच, और उसके साथ मैं भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करती थी, तो मुझे घूमने से एलर्जी होने लगी थी. मुझे लगता था मुझे नहीं जाना यार घूमने, अब हो गया मेरा. तो मैंने बिजनेस भी स्टार्ट किया, मैंने करियर भी अपना, सो आई एम वेरी कंटेंट कि मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट कर लिया था अपनी ज़िंदगी में. तब मुझे एक वो लगने लगा था कि मे बी वॉट नेक्स्ट. लाइक ठीक है, मे बी लाइक दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप. ओनली देन व्हेन यू फील कि ऐसा आपको लग रहा है, आई विल स्टिल से टू ऑल द यंग गर्ल्स कि तभी करो बच्चा, और बिकॉज इट इज़ अ बिग, मतलब इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपको. So how did this whole process change your perspective towards yourself and towards life? आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट. पता है, मतलब आफ्टर बिकमिंग अ मदर मुझे लगता है यार इतना कुछ देख लिया. अब मुझे जैसे अगर मैं पहले अगर इस पॉडकास्ट पे आके बैठी होती है, बात करनी होती, तब आई वुड हैव बिकम नर्वस. या जैसे मैंने गौरव का रोस्ट किया था, मैं काफ़ी नॉर्मल थी, क्योंकि मुझे वही लग रहा था, मैंने कहा यार इतना कुछ तो करा लिया जाके मतलब बच्चा पैदा कर लिया यार, अब क्या. हाँ, और वो भी husband अब मुझे मतलब उतना आई फील वेरी कॉन्फिडेंट लाइक इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. अब बिजनेस कुछ वो हो रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं यार, अब कर लिया यार, इतनी सारी IVF 2-3 बार झेल लिया, मतलब पेट कटवा के बच्चा निकाल लिया, उसको पाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ. सो विमेन दे काइंड ऑफ, आई डोंट नो, एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको वंस यू go through this process of motherhood, na? Yeah. And what was that moment in your life, Shreya, when you thought that now I should become a content creator? I should start creating vlogs. See, honestly, I don't consider myself as a content creator. I just post for fun. I'll just, but it's not my livelihood. I just vlogs जो है, like I was saying, मैंने और गौरव ने we started during COVID times. Because everybody was trying something new. I think I'll have some. Okay. Everybody was trying something new. So Gaurav was like, let's start vlogging. So he picked up the phone and he started recording things. And then since obviously I'm his wife, 24 घंटा अब मेरे साथ ही था, तो I became a part of his vlogs. And वो घर जाता था विकासपुरी, वहाँ पे उसके पेरेंट्स, भाई बहन सब कोई. So that's how it started. So मैं तो ऐसे खुशी में, जैसे नॉर्मल लोग कंटेंट पोस्ट करते हैं, मैं तो वैसे ही करती थी. अभी भी आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ हार्डकोर कंटेंट क्रिएटर. धीरे धीरे बट आई फील कि अब मुझे लगता है कि आई थिंक एवरीबडी शुड बी अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज दैट इज द वे फॉरवर्ड. अब आप देखो, आप बिजनेसमैन ये सब भी देखो, दे हैव ऑल्सो बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. अब पॉलिटिक्स में आप देखो, एवरीबडी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर. मतलब आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड. तो अगर मुझे अपना बिजनेस भी चलाना है तो मुझे कंटेंट बनाना ही पड़ेगा. तो ये अब धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू दैट जर्नी. बट हाँ, तो व्लॉग्स जो स्टार्ट हुए थे तो वो गौरव के थ्रू हुए थे स्टार्ट. सो यू नो, आई जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ इट. So it was never my vlog, it's Gaurav's vlog only. And while I was going through those vlogs, I realized that actually you are the star of the vlog. People are asking, I take that we as would a like to see compliment. more of
Shreya, we would like to please bring her in. We would like to see more of her content. So you became the star in that whole movie. Nice. How did that happen? आई वॉज बींग माई सेल्फ दैट्स इट मतलब कुड बी कि मुझसे ना ज़्यादा प्रिटेंड नहीं होता है आई कांट बी हु आई एम नॉट मे बी पीपल लाइक दैट आई डोंट नो मे बी पीपल आर द राइट जज ऑफ दिस एंड दे से बट मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही थी व्लॉग में लाइक देर इज नथिंग ऑनेस्टली देर इज नो प्रिटेंस नथिंग मेरा और गौरव का जो रिलेशनशिप है इफ़ यू आस्क like you know my close friends and all they'll say like in real life also we like this only जैसा हम vlog में दिखाते हैं अगर हमारा झगड़ा होता है we used to show okay हम झगड़ रहे हैं like there is nothing no buttering nothing happening कि हाँ ये हमारी relationship बहुत अच्छी चल रही है झगड़ा भी हो रहा है अगर मैं उससे बोल रही हूँ अगर if he's someday he's coming home drunk तो I'm like yelling at him कि what is this यार तो I think maybe that's what people like you know that's how relationships are sometimes you'll fight sometimes you'll you know खुश होंगे कभी हंसेंगे कभी प्यार भी करेंगे सब दिखा देते हैं हम व्लॉग में सो मे बी लोगों को वो अच्छा लगता होगा शायद you know but at times they say that once you start to become a part of the content creation industry now as much as there are people who love you who would like to see more of you as they said that Shreya is the real star of those vlogs there are people who are going to troll you as well yeah so how do you deal with that trolling पहले तो लगता था थोड़ा कुछ भी अगर क्योंकि आप कितना वो करोगे कितना यू कैन नॉट वॉच योर सेल्फ एवरी टाइम यू आर स्पीकिंग राइट जैसे अभी आपने जैसे मैं कुछ बात लेकिन इन द फ्लो समथिंग कम बट जो इंटेंशन होता है वो गलत नहीं होता है मतलब यू नो इट मोस्ट ऑफ द थिंग जो फ्लो में निकल जाती है बट जब आप कंटेंट देख रहे होते हो ना तब आप उसको एकदम ऐसे जजिंग वाली आइज से देख रहे हो अरे इसने ये बोल दिया जब लोग देख रहे होते अरे इसने ये कैसे बोल दिया एक पार्ट निकाल के कोई वो कर देगा कि हाउ कुड शी से दिस बट उसका आगे पीछे का थोड़ी देख रहे हैं लोग सो वो अब तो मुझे लगता है इंटरनेट इज़ ऑल अबाउट आई डोंट नो दैट्स वाई आई विल से कि थोड़ा सा यू नो वी हैव टेकन अ बैक सीट फ्रॉम ब्लॉग ऑल्सो इट्स वेरी मच अबाउट हेट आई फील लाइक यू नो इफ़ यू सी अब हेट कॉन्टेंट ज़्यादा चलते हैं और आई डोंट नो मे बी आई एम बीइंग टू नेगेटिव और समथिंग बट इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग no you're just sharing your experience people are just sometimes I feel they're just there to troll कि कुछ तो खराब बोले और मैं इसको इसको पकड़ूं like let me catch this and it's a human behavior हाँ it's a psychology that there are people who find pleasure in pulling people down yeah and abhi that number of people is increasing a lot probably because of the jealousy because everybody has a medium to जो कि ठीक है it's their right also if you are putting yourself out in the public you have to be open to criticism also और and we didn't stop vlog and just I just want to clarify कि कोई ऐसा कोई comment की वजह से हमने कोई बंद नहीं किया it was just because गौरव started like बहुत busy होने लगा वो तो हाँ सो इफेक्ट करता था पहले क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तब वी वर नॉट यूज टू ऑल कि हाँ अच्छा श्रेया तो गौरव को तू बोलती है ये बोलती है बट इवेंचुअली देन आई स्टार्टेड गेटिंग यूज टू इट अब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मतलब लिटरली जब हमारा व्लॉग मतलब 2-3 साल हो गए थे देन आई लाइक ठीक है यार आ रहा है कमेंट तो फिर आप काफ़ी इम्यून हो जाते हो सारी चीज़ों के अभी भी मैं अगर आपको अपने डीएम्स दिखाऊँ ना एवरी डे आई गेट एटलीस्ट 50 डीएम्स की श्रेया व्लॉग कब स्टार्ट करें तो अब मुझे मैं गौरव को बोलती हूँ क्या अच्छा लगता था लोगों को मतलब व्यूज़ तो ओके ही थे ऐसा तो कुछ नहीं था बट आई थिंक द पीपल हु इज़ टू वॉच मे बी दे लाइक डिट अ लॉट और समथिंग सो वो तो काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है आज भी कभी कभी ऐसा होता है मॉल में रहती हूँ तो पीपल दे कम एंड दे श्रेया ओ वी मिस योर व्लॉग्स एंड ऑल तो इतनी छोटी सी जर्नी में लोग इतना पहचानने लगे आपको सो दैट इज क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर मी if I reflect at your life journey it has been quite a journey because you've done multiple things as we discussed from corporate to becoming a mother then you were also working with Good Earth right as a category head and then you left that as well and you started your own label what was that See, I always wanted to start a business. I think everybody, सभी को लगता है अपनी जर्नी में ना लाइफ की जर्नी में कि कुछ तो अपना करना ही चाहिए ऑनेस्टली लोग जितना भी बोलें कि हाँ मेरा जॉब ये है बट अल्टीमेटली बैक ऑफ द माइंड सबको ये लगता है अपना काम होना चाहिए सो मेरा भी वही था कि यार ठीक है ऑफिस ये सब ठीक है आ रहे हैं जा रहे हैं मतलब ठीक है कंपनी को आप प्रॉफिट बना के दे रहे हो या उसके लिए किसी और के लिए काम कर रहे हो बट आपको लगता है कि एक खुद का होना चाहिए व्हेन यू नो हाउ थिंग्स आर डन यू हैव ऑल द नो हाउस तो आपको लगता है यार ये मैं भी बट द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स यू इज यू डोंट हैव द फंड राइट तो वही था लाइक आफ्टर व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मैं कितना 12 साल की
मेरी कॉर्पोरेट जर्नी में आई हैड सेव्ड इनफ. गौरव ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग वेल. तो आई वाज लाइक ठीक है, आई कैन टेक सम मनी फ्रॉम हिम. मैं अपना पैसा लगा के आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ माई ओन. और इवेंचुअली काफ़ी बॉस की भी चिक चिक होने लग गई थी और वो सब भी बहुत होती है. वो तो खैर इट्स अ यूनिवर्सल थिंग. तो मतलब जब मैंने कहा ना बॉस की चिक चिक बहुत, जो खुशी थी ना चेहरे के ऊपर, तो मतलब संभल नहीं रही थी वो वो तो खैर अब हर ऑफिस में वो तो आपको लगता ही है कि यार क्या ही, मतलब नौकरी छोड़ो, अपना बिजनेस को स्टार्ट. आई होप माई टीम इज नॉट लिसनिंग टू दिस. आई होप एवरीबडी लिसन्स एंड एवरीबडी स्टार्ट देयर बिजनेस. पता है मैं आई जस्ट वांट टू से कि जो मिलेनियन बच्चे हैं, हम लोग जैसे बड़े हुए हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें बताया, मतलब कि आप पेरेंट्स शुड टेल अस कि और बिजनेस करो, लाइक दे शुड इनकलकेट दैट इन अ माइंड. बट वी वे ऑलवेज कि हाँ पढ़ो लिखो और नौकरी करो. सो दिस इज वॉट वॉज ऑलवेज फेड इन आवर माइंड, विच इज आई फील विच इज अ वेरी फ्लॉड दिस थिंग कि everybody should be an entrepreneur. I feel the amount of lessons, the amount of teachings that मतलब जो आप खुद लर्न करते हो ना खुद के बिजनेस से करने में, आपको कोई दुनिया का जॉब नहीं सिखा सकता. like when I was, I'll just tell you the difference. When I worked like 12-13 years in different verticals. I have done marketing, I have done like fashion में there's thing called merchandising, तो designing and all of this, buying, बहुत सारी चीज़ें होती है. So but I'll still say my approach was very one dimensional. But once you start a business, आपको इतनी चीज़ें पता चलती है. जैसे मैंने जब स्टार्ट किया, मुझे सोर्सिंग भी करना, मुझे सारी चीज़ें, मैंने स्टार्ट तो वैसे ही किया था, फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड एलोकेटिंग, आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल एंड ऑल. बट आई नीड टू हैव आइडिया अबाउट एवरीथिंग. तो वो मुझे लर्निंग, मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई भी जॉब में मिली थी जो मुझे इन माई बिजनेस मिलती है. मेरा बिजनेस लाइक करेंटली इफ आई से it's not earning a lot of profit because obviously after having a baby I kind of took a back seat. और अभी सिर्फ उसमें चल रहा है, no profit no loss. हाँ बस सस्टेन कर रही हूँ मैं. ब्रेक इवन हो रहा है. हाँ ब्रेक इवन हो रहा है बस, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए अगेन आई हैव टू लाइक गो आउट देयर एंड जस्ट बी देयर. तो वो आई एम टेकिंग सम टाइम टिल माधव ग्रोज अप. तो अभी पैसा वैसा मैं उतना नहीं कमा रही हूँ, बट स्टिल द अमाउंट ऑफ जॉय इट गिव्स मी, द अमाउंट ऑफ एक डायरेक्शन जो मुझे देता है मेरा बिजनेस, आई डोंट थिंक आई हैव गॉट इट फ्रॉम एनी ऑफ माई जॉब. सो मुझे तो लगता है सबको अपनी लाइफ में एक बार तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना ही चाहिए. So would you और say, अभी यंग एज के बच्चों को तो अभी तो इतने मीडियम हो गए, आपको फंडिंग आराम से मिल जाती है, आपको इन्वेस्टर्स आ जाते हैं अगर आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, कि शार्क टैंक वाक टैंक कितना कुछ है. सो हम जब बड़े हो रहे थे, देयर वाज नथिंग. इट वाज आई थिंक अपना पैसा लगा के बिजनेस करना वाज द ओनली वे आउट. है ना, बूटस्ट्रैप करना. हाँ बूटस्ट्रैप वाला बिजनेस ही था. तो बट अब तो इतना, तब तो और लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में. बट अगर जॉब नहीं करी तो गौरव भी तो नहीं मिलते. हाँ बट हाँ यू नीड दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो. 4-5 साल का एक नहीं, गौरव वाला पार्ट तो अलग है, बट आई जस्ट वांट टू से कि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं है कि आप 18 साल के और आप सोच रहे हो कि बिजनेस कर लोगे. यू नीड थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए होता है. सो टेक दैट एक्सपीरियंस, जॉब करो थोड़ा 4-5 साल के लिए, बट हैव दैट अल्टीमेट विजन इन माइंड दैट यू शुड डू समथिंग ऑफ योर ओन. इट काइंड ऑफ ओपन्स द वर्ल्ड अप फॉर यू. लाइक आपका एकदम नैरो अप्रोच होता है ना, वो सही हो जाता है. हाँ गौरव नहीं मिलता हो तो बहुत सारी चीजें हैं. हाँ, tell us about that office romance. What happened? तो क्या, तो गौरव How did रोमांटिक it आपको लग begin? रहा है? गौरव बिल्कुल ही नहीं है ऑफिस रोमांस. So what is your definition of romance that he does not fit in? हमारा डेफिनेशन देखो, मैं तो बॉलीवुड मूवीज देख के बड़ी हुई हूँ. मेरा डेफिनेशन तो वही है कि ग्रैंड जेस्चर्स और वो सब. लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर वो Public करता भी display मेरे तो of मुझे तो affection. वैसे क्रिंजेस, नोइंग माई सेल्फ, मैं काफ़ी क्रिंजी लगता मुझे. बट गौरव का अलग है, लाइक ही हैज़ लाइक sometimes his way of romance is different, like sometimes he's just there for you, like you don't want anybody, like he doesn't judge you, he doesn't ऐसे कोई नसीहत लेके नहीं आता आपको करना चाहिए, कि करना चाहिए, वो करना चाहिए. he's just there for you. Sometimes that's all you need from a person, right? So if you're going through a bad time, he's there. Or so yeah, he doesn't fit into the quintessential romantic guy, but he's still romantic in his own way. तो मेरा रोमांस का तो डेफिनेशन वही था. हम तो वही बड़े फुल फिल्म ही देख के बड़े हुए हैं. तो हमारा तो वही था. एंड गौरव इज नॉट एट ऑल अ बॉलीवुड बफ, मतलब उसको मूवी से मतलब ही नहीं है कोई. मैंने कहा यार थोड़ा तो देख लेता शाहरुख खान को, ये सबको थोड़ा तो कुछ तो सीख लेता.
So, Shreya, you spoke about Gaurav. And it all started from one of the roles that you were playing it with one of the corporates. Tell us about that. How did that corporate office romance begin for you? So me and Gaurav, we met on my second job, which was very hectic. Like काम वाइज तो बहुत ही हेक्टिक था, तो जिंदगी तो एकदम ही झंड हुई हुई थी. लाइफ के भी मतलब पर्सनल लाइफ भी कोई बहुत ग्रेट नहीं चल रही थी मेरा. I just love it when you say झंड हुई हुई थी. हाँ बहुत, बिकॉज यही एक्सप्रेशन था. और मतलब मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बट इट वॉज आई डोंट नो वेरी हेक्टिक टाइम्स. पर्सनल लाइफ भी आई वॉज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, तो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी. और दिन भर ऑफिस में, मतलब सुबह आते थे 9 बजे, रात के 11 बजे जा रहे हैं. लाइफ कहाँ जा रही है, करियर कहाँ जा रहा है, कुछ ठिकाना, मतलब मेरा कोई वो नहीं था. ऐसे एक ना रोबोटिक लाइफ जिए जा रहे थे. जैसे मुंबई वाली जो लाइफ है ना, वो मुंबई में थी तब मैं. तो वही लोकल में चढ़ते थे 8:30 बजे की, लोकल पकड़ते थे, 9:30-10 बजे ऑफिस पहुंचते थे. वो करो, काम करो, बिल्कुल वैसे रोबोट वाली जो लाइफ होती ना, वही चल रही थी. So Gaurav came as a breath of fresh air, I'll say, because he brought in a lot of humor, a lot of fun in office. So and I was his mentor. Like I was assigned कि okay, you will be like, he was very fresh out of college, so he had no idea कि कैसे कंपनी कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कैसे वर्ड डॉक करते हैं, क्या एक्सेल में फॉर्मूलाज कैसे लगाते, कुछ नहीं पता था उसे. सो लिटरली आई काइंड ऑफ टॉट हिम. तो उसी दौरान लाइक मज़ा आता था उसके साथ ना, कि काम करने में भी बहुत हंसी मजाक. कोई इफ़ आई एम हैविंग अ बैड डे, लाइक यू नो, ही यूज्ड टू काइंड ऑफ जस्ट लाइटन अप द मूड. और तो ही वॉज लाइक, यू नो, ही यूज्ड टू लाइक, फिर जैसे दोपहर में चाय पीने चले, यहाँ चल चाय पीने चले. सो ही वॉज वेरी मच लाइक अ फ्रेंड. लाइक इनिशियली तो आई नेवर थॉट ऑफ हिम एज अ लवर, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूँगी, बिकॉज वो उससे वो बच्चे वाली ही फीलिंग आती थी कि यार ये तो छोटा है, 3 साल छोटा है मुझसे, क्या. But eventually, like, you know, when things started progressing, okay, हम अच्छे दोस्त बन गए and all. So then I was like कि ठीक है यार, मतलब. और जब घर से प्रेशर आने लगा शादी वादी का, अब करो शादी है. So then, you know, I kind of started comparing कि should I think of being with Gaurav, or should I start looking out for guys, other guys and all. तो मैंने गौरव को like, you know, I went ahead and I told him very clearly, see, मेरे पेरेंट्स से प्रेशर आ रहा है. And I think like I would want to settle down, and you know, I would want to get married. So then he was not, मतलब इसलिए श्रेया, मैं तो 27 साल का ही हूँ, मैं शादी की तो सोच भी, मेरा करियर फलाना ढिमकाना. तो मैंने तो उसे ना अल्टीमेटम दे दिया. मैंने कहा देख ले यार, तुझे शादी करनी है तो बता, नहीं तो मैं तो अब जीवन साथी में लड़के खोज रही हूँ, मतलब. तो यार बेचारा, वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी वो हो गया था कि यार क्या करूँ अब, मैं समझ में नहीं आ रहा. बट मैंने बोला यार ठीक ही होगी ज़िंदगी, चिंता मत कर, मैं इतनी बुरी लड़की नहीं हूँ. So yeah, we started on a very fun note. So it wasn't very this thing कि he was like ठीक है यार चलो देख लेते हैं. मतलब बहुत ही अनसीरियस वे में हमारी शादी हो गई. आई फील ऐसा कुछ वो नहीं था कि हाँ कि बहुत ऐसा कोई फायरी रोमांस हुआ या वैसा कुछ नहीं. इट वॉज वेरी कि हाँ ठीक है, लेट्स सी, लाइक लेट्स देखते हैं क्या होगा, लेट्स गेट मैरिड, चलो. मेरे लिए भी इट वॉज अ वेरी दिस थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज माई जूनियर, मुझसे कम कमाता था पैसे वो. सो एंड आई वॉज सॉर्ट ऑफ हिज बॉस. और सो ही वाज लाइक श्रेया आपके घर वाले मान लेंगे. मैंने कहा यार ठीक है, मतलब अब पता है 30-31 के बाद जब लड़की की शादी हुई तो घर वाले किसी भी चीज़ से मान लेते. बोले ठीक है, कमा रहा है ना, कोई नहीं, तुझसे कम ही कमा रहा है. मैं तो आई वाज लाइक ठीक है यार, कमा. मतलब गौरव इज इक्वल टू कोई भी चीज़, ऐसा नहीं है ना? नहीं. सो आई एम जस्ट सेइंग कि एक सच में आफ्टर अ गर्ल, इंडिया में ऐसा होता है 30 का होते ही ना पेरेंट्स को, फिर 30 के पहले तो खूब नखरे करेंगे, हाँ ये वो. जैसे ही आपकी एज आना, कोई नहीं, अब मतलब कर ले, तो शादी कर ले बस. लड़कों के साथ भी ऐसा होता है 32-33 के बाद. हाँ अच्छा. आई गॉट मैरिड वेरी लेट इन माई लाइफ. अच्छा. सो या, सो इट वाज ऐसा कोई. और हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी चिल थे. लाइक माई पेरेंट्स वर ऑल्सो ओके विद हिम, एंड हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो क्वाइट चिल. तो काफ़ी आराम से शादी वादी हो गई, एंड वी ऑल्सो टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली. तो सेकेंड जॉब में मिले थे, एंड ही वॉज माई जूनियर, ही वॉज अर्निंग लेसर देन मी. सो मैं गौरव को बोलती हूँ यू वर माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट. लाइक आई लिटरली मैरिड यू व्हेन योर सैलरी वॉज हाफ द माइंड, एंड नाउ आई काइंड ऑफ लाइक ठीक है, अब उसके पैसे पे ऐश कर रही हूँ. या सो यू नो, ऑफिस के अंदर बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं, पावर डायनेमिक्स होते हैं, HR को बताना नहीं बताना. हाउ डिड यू गाइज मैनेज दैट?
तो हमने कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया ना, मतलब जब तक हम काम कर रहे. सो इन माई सेकेंड जॉब we didn't start dating in our second job, we met. Okay. So in my third job it was Pantaloons, तो मैं वहाँ गई, फिर मेरी वहाँ जॉब लगी. And then I pulled Gaurav because obviously I was senior, तो I told my seniors कि he's a, और काम में भी अच्छा था वो, like you know he is a very street smart guy. Like maybe that was one of the also reason कि मुझे लगा कि funny and all तो चलो ठीक है, but if you see from a life point of view also, I found him to be very very smart, very street smart. Like I knew that you know I sort of had an intuition he will do something well in his life. तो it wasn't like a very lame decision for me. I was like कि ये smart तो है, क्योंकि वो मेरे अंडर ही था, मुझे कुछ समझाती तुरंत समझ जाता था. He was very passionate, PPT जल्दी बना रहा है, Excel फटाफट काम कर रहा है, जल्दी से बॉस को रिपोर्ट दे रहा है. मैं एक मतलब गौरव मजाक भी करता है इस बारे में. So literally मैं जो मेरा सेकेंड जॉब था ना, then I had a fallout with my boss, and my boss literally came and told me, oh गौरव तुमसे बेटर काम करता है. And I was like what? मैंने सिखाया है उसे काम करना, how can you tell this to me कि गौरव मुझसे बेटर. और उसके कुछ टाइम के बाद फिर मुझे तीसरी कंपनी में जॉब मिल गई, तो आई लेफ्ट ओनली. तो गौरव लाइक मैंने आपकी जॉब खाई है सेकंड कंपनी में. सो मैंने कहा वो तो खाई है तूने. लाइक ऑब्वियसली अ बॉस कमिंग एंड टेलिंग, माई बॉस कमिंग एंड टेलिंग यू मी कि माई जूनियर इज वर्किंग बेटर. आई वाज लाइक, मैंने कहा ये काफ़ी मैनिपुलेटिव लड़का है ये. वैसे काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट था. सो वो तो पता था मुझे कि ही विल डू वेल इन लाइफ. कॉमेडी होगी नहीं होगी वो मुझे नहीं पता था, बट हाँ मुझे लगा था कि अपने कॉर्पोरेट करियर में तो ही विल गो वे एड, बिकॉज ही यूज्ड टू जेल अराउंड विद पीपल. बॉसेस को के साथ मस्त हंसी मजाक कर रहा है और सब खुश हैं, अरे गौरव 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 हो रहा है. तो आई वाज लाइक यार ये तो अलग ही है. फिर जब मैं थर्ड कंपनी में गई अपनी, सो पैंटलून्स वाज माई थर्ड जॉब. देन I think everybody wanted a hike and also I was like yeah, they are offering, there's a good position, you want to come? He was like ठीक है. तो फिर तब भी हम डेट नहीं कर रहे थे. So it was just out of good मतलब gesture. I was like कि ठीक है, maybe मैं तेरा जॉब लगा देती हूँ and all. तो फिर वहाँ पैंटलून्स में is when we started dating. And yeah, we had to, हमने नहीं बताया था HR को obviously. But what shifted that it changed the whole equation between you and him? वही कि घूमते फिरते we were friends, like I told you. Was it pressure कि यार अब तो किसी भी चीज़ से शादी कर ले? नहीं. Was it that or there was a real spark? See, जो मेरी उस गौरव से पहले वाली रिलेशनशिप थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क था और वो स्पार्क फुस हो गया था. सो आई लाइक स्पार्क की कोई पॉइंट नहीं है लाइफ में. जस्ट कीप द स्पार्क असाइड. यू लर्न दीज थिंग्स वंस यू गो थ्रू अ कपल ऑफ रिलेशनशिप्स ना, कि स्पार्क वाक कुछ नहीं होता. यू नीड टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ. ठीक है. सो गौरव ही वॉज द मेन थिंग विद गौरव वॉज आई यूज्ड टू एंजॉय हिज कंपनी अलॉट. अब वो स्पार्क था नहीं था, आई डोंट नो. आई यूज्ड टू, मज़ा आता था उसके साथ घूमने में फिरने में. और he is a very good guy also. Like I like to point out, like he's in general he's a very kind person. Like I'm not saying this because he's my husband. Yeah, अगर मैं जब there was nothing between us also ना, that's what kind of attracted me to him. कि he is kind, like he is very giving. जब जैसे ऑफिस पार्टीज में भी हम जब साथ में जाते थे, like I'll just give you an instance कि 10 लोग अगर बैठे हैं, everybody मे बी 10 लोग में 7 लोगों की सैलरी शायद गौरव से ज़्यादा हो, बट जब भी बिल आता था, यूज्ड टू बी लाइक ठीक है ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड. आई लाइक एक्सक्यूज मी, आर यू अर्निंग दैट मच दैट यू विल पे बिल फॉर लाइक 10 पीपल? इज लाइक कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड से दे देंगे ना बाद में. सो इन दैट वेज ही वॉज वेरी जेनरस. और आप चाहे जो भी बोलो, लाइक जेनरोसिटी इन मैन इज अ वेरी, I don't know, I'll say a positive point for... It is like, you know, it is the positive point for everyone. Men, they actually, बहुत सारी debates होती है, लड़कियाँ पे करें, लड़के पे करें, ये सारा होता है. Like it's a very controversial topic, but I just feel कि you know it kind of, this is one like generosity, like you know if a man he just shows कि हाँ ठीक है, it's okay, it's fine. So it's not about being miser, or it's not, it's just a quality in a man, like you know. I'll just call it gentleman. That's what being a gentleman Generosity is anyways. There are so some Gaurav, basic without trying to be a gentleman, he kind of showed that you know he's a gentleman in his gestures. So those kinds of things attracted me to him a lot. And he was like, you know, even when we were not dating and all, he was very much there for me. Like you know, he used to call up, check श्रेया सही, क्योंकि बीच में वो दिल्ली आ गया था, ऑफिस से दिल्ली आ गया तो 6-7 महीने, बट ही यूज्ड टू कीप कॉलिंग मी अप कि श्रेया आर यू फाइन, सब सही चल रहा है एंड ऑल. लाइक ही यूज्ड टू चेक ऑन मी कि हाँ सब, लाइक नथिंग, नो वैसा नहीं है कि कोई इंटेंशन हाँ इनको पटाऊंगा या वो वाला कोई इंटेंशन, जस्ट एज अ फ्रेंडली जेस्चर.
सो ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ अट्रैक्टेड मी टू हिम. सो देयर वाजंट कोई फायरी रोमांस नहीं था. इट वाज अ वेरी वेल थॉट एंड धीरे धीरे करके द लव बिल्ड अप. सो yeah, so I was like these छोटे things na kind of made me realize that he's a good boy, he's a good man, and I would want to spend my life with him. And Gaurav is a very well-known stand-up comedian and a content creator in the industry. People have seen that personality of his and follow him. But very curious, how is Gaurav as a father, as a dad at home? वेरी वेरी लविंग. पता है गौरव की एक चीज़ है, वो ना उससे बहुत गिल्ट फील होता है. लाइक मदर गिल्ट से ज़्यादा ना मुझे लगता है उसे फादर गिल्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ट्रैवल करता है. सो ही कीप्स टेलिंग मी, श्रेया मेरे बेटे को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या आई डोंट नो, ये ना मुझे भूल जाता होगा, मुझे लगता है मैं वापस आता. तो ही इज़ ऑलवेज इन दैट गिल्ट ओनली. मैंने कहा यार या तो तू वो कर ले या तो तू काम कर ले. Obviously, like, you know, you can't do both the things, right? You can't always feel guilty, okay, I'm not giving enough time to my child. But now he has started kind of balancing both the things. He's a very loving father. And he's very practical also. अभी तो अभी तो बहुत छोटा है माधव वैसे. Madhav is, you said 8.5 months. Yeah. How sweet. Yeah. But Shreya, कभी ऐसा होता है कि people, when they recognize you as Gaurav's wife, and I'm sure you have your own identity as well. So how do you balance that? ऐसा कोई वो नहीं है कि ठीक है, if somebody comes and I think you're Gaurav's wife, तो I take it as a compliment only. मतलब there's no competition between me and Gaurav कि हाँ मेरी identity नहीं है. I'm like ठीक है, like I take it in the go कि हाँ I'm Gaurav's wife. और अगर आप identity पूछो तो if you ask like about me, I identify myself as an entrepreneur. Like you know, like you said, like ठीक है गौरव की वाइफ एंड कंटेंट क्रिएटर एंड ऑल ऑफ दैट. बट इफ़ यू आस्क मी, लाइक आई जस्ट वांट टू गिव यू एन इंस्टेंस. जैसे मेरा बिजनेस है, लाइक गौरव हार्डली मेंशन्स इन हिज, ही हैज़ कितना 1.5 मिलियन फॉलोअर्स. कभी मेंशन नहीं करता बीवी का है. व्लॉग में भी हम हार्डली मेंशन करते हैं. सो अगर हम चाहते तो ऑब्वियसली आई कुड हैव कैश्ड इन अ लॉट फ्रॉम हिज पॉपुलैरिटी एंड ऑल, राइट? बट वी डोंट डू दैट. वी डोंट वांट टू डू दैट. इवन आई डोंट वांट टू डू दैट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक मैं ये करूँ, शेयर करूँ, आई लाइक no, it's okay, like, you know, and the whole business I've built wholly and solely on my goodwill and my this thing, like isme Gaurav ka, other than funding, initial funding and all, there's no this thing of Gaurav. So this is, if you ask me, like, this is my sole identity. Most of my customers, they don't even know that I'm Gaurav Kapoor's wife. Like they don't care. तो जब दोनों घर पे जाते होगे, right? Entrepreneur, content creator, stand-up comedian, content creator, and there's a lot of eyes onto you. People watch both of you. People recognize both of you when you'll be walking on the streets. But जब घर पे आते हो, how do we ensure that we don't carry that air? घर पे, but do you treat him like a normal husband? कि बैठ जा, चल वहाँ हो जा. मैंने तो क्योंकि उसे तब से देखा है ना, when obviously he was my junior, right? जाके 1 किलो आटा लेके आ जा, ऐसा होता है यार. मतलब वही मैं बोल रही हूँ, because I तो know him since, you know, he joined my office, like he was literally an intern. तो मेरे लिए तो that journey, his becoming a stand-up comedian, like I have also been a part of his journey. Like I have accompanied him to almost all open mics. जितने भी वो ओपन माइक्स करने जाते थे मैं जाती थी. कंटेंट हम बैठ के डिस्कस करते थे. तो मेरे मतलब व्हाट एयर विल ही थ्रो एट मी. मैंने तो देखा है उसे. अब वो मतलब मेरे लिए तो कुछ वो नहीं है. लेकिन इट्स अ वेरी, एंड आइडियली ही ऑल्सो वांट्स दैट. लाइक ही डजंट वांट पीपल हु जो उसके आगे पीछे जी हजूरी करें. ही इज़ वेरी क्लियर कि आई डोंट वांट कि मेरे पीछे आगे पीछे ऑन्थ्रॉज घूमे और वो सब नहीं है. सो दैट वे लाइक आई टोल्ड यू, ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन. उसको नहीं पसंद है वो बहुत ज़्यादा यू नो आई बॉल्स की सब मुझे देखें और वो सारी चीज़ें. ही इज़ लाइक आई वांट टू, लाइक ही इज़ पैशनेट अबाउट हिज वर्क, ही इज़ पैशनेट अबाउट अर्निंग मनी, ही वांट्स, ही इज़ क्वाइट एम्बिशियस, बट ही इज़ नॉट पैशनेट अबाउट कि हाँ लोग जी हजूरी करें उसकी. वो वाली चीज़ का पैशन नहीं है उसको. In fact, he hates it really. Like I'm like normal only. You're also doing your job. I'm also doing my job. Yeah. So that way he's very clear. No, Shreya, since you have actually seen his journey and you have been on your journey as well, be it vlogs or your own content creation. You know, आजकल I'm sure you know it much better than me. All these cases that has happened, right? समय राणा का जो केस हुआ,
where people pick up a small thing, as you said, कि इतनी सी उठा लेंगे without understanding उससे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, and then they are going to roast this person, or they will come और तोड़ा ताड़ी शुरू हो जाती है. So as a family who's into content creation, how do you ensure that we have to protect ourselves from that space as well? हाँ, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन का तो काफ़ी ज़्यादा वो वाला वो जो area कामरा होता का है. हुआ अभी. हाँ, सो गौरव का जो है लाइक ही मेक श्योर दैट ही डजंट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्शियल जोन. सो ही इज़ वेरी क्लियर. कभी जैसे मैं कभी उससे बोलती है इसमें क्या है यार, ये डाल दे, इसमें तो कुछ इशू नहीं है. ही इज़ लाइक नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट. सो ही इज़ वेरी क्लियर, ही डज नॉट वांट टू गेट इनटू Any kind of controversy. नो. सो उसका एक सेट है लाइक विच ही हैज़ ऑल्सो सेड इन कि विच इज़ लाइक काइंड ऑफ कॉन्ट्रो, बट ही नेवर डज इट नाउ. ही हैज़ केप्ट इट बक्से में बंद करके. ही इज़ लाइक आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट टेरिटरी, विच इज़ वेरी क्लियर अबाउट. And how do you ensure that you also mince your इनफैक्ट मैं words तो properly? बोलती हूँ, मैंने कहा ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, ये तो डाल दे. वो तो इतना सेफ प्ले करता है. इज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस बिकॉज इट्स हिज होल करियर, राइट? लाइक वी नो व्हाट पीपल डू टू स्टैंड अप कॉमेडी. उनको शोज नहीं होने देते एंड ऑल ऑफ दैट. तो वाई गेट इनटू दैट दिस थिंग. अब उसका पूरा घर चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडी से. आप सोचो वो कुछ गड़बड़ सड़बड़ बोल के अब वो कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में अपना खाना दाना पानी सब बंद कर, ये तो बहुत ही बेवकूफ स्टूपिड वाला मूव होगा. Yeah. And also, if you look at in one of those recent interviews I was listening to, Zakir Khan, who happens to be, and again, one of the most celebrated stand-up comedians, he is talking about taking a break because the travel and the campaigns take a lot of toll on one's health. So how does Gaurav take care of his health? How does he ensure that he takes care of his mental well-being while he's traveling? इट इज़ वेरी टफ. हाँ, मतलब इट ऑल लुक्स वेरी दिस थिंग कि हाँ स्टैंड अप इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए, इतनी तालियाँ, इतना आई बॉल्स आपको मिल रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं आपको, लोग सड़कों पे पहचान रहे हैं, बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ मेंटल लोड. What is that? एक तो ट्रैवल, इट इज़ वेरी लोनली. लाइक अब आप अलग अलग सिटीज़ में जाते हो, वो होटल रूम, मतलब आपका काम क्या है, 1-2 घंटे का काम है. बाकी टाइम तो होटल में यू जस्ट, एंड इट्स नॉट अबाउट कि महीने में एक बार जाना है ना. एवरी डे सेम थिंग, सेम, मतलब सेट भी लाइक अगर आप वो देखो स्टैंड अप कॉमेडी का सेट भी सेम ही है. लाइक इट्स अ लगता है ऐसा बाहर से, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी मोनोटोनस लाइफ. एंड इट्स नॉट, लोगों को लगता है अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है तो घर पे भी खूब हंसी मजाक होता होगा. ऐसा नहीं होता है. लाइक एवरीबडी इज लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ. वही उसको 1 किलो दूध लेने जाना ही पड़ता है. दूध का तो छोड़ो, ब्लिंकिट है अभी तो दूध लेने तो नहीं जाता है वो. बट वो है कि हाँ जिंदगी वैसे नॉर्मल है. ऐसा कुछ ये नहीं है कि हाँ गौरव घर आ रहा है तो हाँ अब मैं आपको हंसाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. पीपल है लाइक गौरव तो आपको बहुत हंसाता होगा. मैंने कहा नहीं हंसाता, हंसते भी हम, बहुत झगड़ा भी करते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, ऐसा नहीं है. तो या दैट्स लाइक टोल तो होता है बहुत ज़्यादा मेंटल. गौरव हैज़ ऑल्सो बीन थिंकिंग कि अब लेगा थोड़ा सा ब्रेक. अब सोचता है, फिर उसको लगता है यार श्रेया इतना लाइक ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ मनी राइडिंग, राइट? सो इज लाइक अब इतना शो छोड़ूंगा यार. इतना आते तो हम सारे मिडिल क्लास उससे ही है ना. अब हमें पता है कि अब इफ़ ही डजंट वर्क फॉर 2 months काफ़ी ज़्यादा वो नुकसान होगा. सो देन अगेन बेचारा वापस उसमें चला जाता है. बट आई थिंक सीरियसली ही स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हिज मेंटल हेल्थ नाउ. एंड या इट डज टेक अ टोल. Zakir is right. So Shreya, the space that you're in right now in your life, where are you heading? अभी तो 90% of my time is going in motherhood. And I think it's going to stay like that for at least 2-3 years. तो अभी रहने ही वाला है. जो थोड़ा बहुत टाइम है आई गिव इट टू माई बिजनेस. आई गिव मेरे और आफ्टर द बेबी मेरे और गौरव का जो क्वालिटी टाइम है वो काफ़ी कम हो गया. लाइक एवरी मदर वुड रिलेट लाइक योर हस्बैंड टेक्स अ बैक सीट वंस यू हैव अ बेबी ना. आपको सारा, क्योंकि आपका दिमाग ही पूरा बच्चे का खाना क्या है, उसको खाना क्या देना है, वो कब सो के उठा है, उसका नैप टाइम क्या है, वो रात में कब सोया, उसकी मालिश हुई कि नहीं, ये हुई, मतलब एवरी थिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड माधव अभी, विच आई एम एन्जॉइंग ऑल्सो इन अ वे. ठीक है, हर चीज़ का एक फेज़ होता है. मी एंड गौरव आई थिंक वी हैव हैड अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम बिफोर द किड. सो आई थिंक गौरव ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. और गौरव भी ट्रैवल करता है इतना. सो या सो करेंटली तो लाइक आई सेड 80% ऑफ द टाइम तो अभी बच्चे में ही जाता है. थोड़ा बहुत जो टाइम है वो मैं अपने बिजनेस को देती हूँ. सो आई हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ माई लाइक आई हैव अ टीम हु वर्क्स विद मी. एंड
they kind of ensure कि मेरे absence में भी everything is taken care of. So yeah, so my business is my second priority. And here's the last question. Okay, that the nation wants to know, Shreya, कि vlogs कब आ रहे हैं? ये आप गौरव से पूछो क्योंकि चैनल तो देखो उसी का ही है. लाइक ही व्लॉग वाज मी एंड गौरव बोथ. खाली मैं अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकती. आई डोंट थिंक पीपल वुड लाइक टू सी मी अलोन ऑल्सो. इट वॉज आर के मेरी और गौरव की केमिस्ट्री थी जो लोगों को अच्छी लगती थी देखने में. So like I said, life is very hectic currently for Gaurav. Like a lot of physical, mental load बहुत ज़्यादा है उस पर भी. So I don't want to pressurize him कि भाई तू एक चीज़ और अपने सर पे ले ले. Something which he can't justice नहीं कर सकता अगर उसके साथ तो unless you don't give you 100% वो कोई point नहीं है. हमने कोशिश भी करी है कि हाँ start करते थे हम, फिर मे बी 4 व्लॉग बनाते फिर गायब हो जाते थे. तो वो हाफ हार्टेडली करने का कोई पॉइंट नहीं है. सो वेन एवर ही इज़ कम्प्लीटली रेडी कि हाँ ठीक है अब मे बी आई वॉन्ट टू टेक अ 6 month का ब्रेक एंड ओनली फोकस ऑन व्लॉग्स, दैट्स व्हेन आई थिंक ही शुड ऑल्सो स्टार्ट. और गौरव बोलता है कि यार श्रेया लाइक I think we have left the vlog on the high. People are asking for more of it, and that's how things should end also. Like you know, अब उसको खींच के हम रबड़ की तरह उसको पूरा वो कर दें कि लोग आपका चेहरा देखने से ही वो हो जाएं कि यार हटाओ इन्हें. Maybe Gaurav will come back with some new show or something. I don't know. Yeah. Let's wait and see. Thank you so much, Shreya, for sharing. And I just loved it when you quoted Gaurav and he says, कि अभी we left it at the end, and that's how things should end. Yeah. Ah, what a beautiful thought to be. So thank you so much, Shreya. It was an absolute Thank you so much for pleasure. calling me. It was lovely talking to you, Gaurav. Yes, it was an absolute pleasure having you here. Thank you so much. Thank you so much, and lots of love to Madhav. Convey my regards to Gaurav, and I look forward to having both of you sometime on the show. Yeah. Take care. Thank you so much. Thanks a lot.